Hello and welcome all of you. You are watching K-Commerce Academy with me, Kunal Singhal. As you know, we have started with the 21 days challenge जिसमें हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं. टुडे दिस इज द फोर्थ लेक्चर. अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले उसे देखें. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इनका नेचर क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद में इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे. इतना तो आपको ध्यान ही है. देयर आर टू ऑथर्स हु हैव referred who have given us the principles of management. One is Henry Fayol, another one is FW Taylor. तो इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले देखें ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनका नेचर क्या है और इनकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है. फॉर्मुलेशन ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स विच कैन जस्ट बी you can say experience or the which can be felt with the availability of management can be seen with the availability of good expansion of the business and growth of the business. Now let us start with nature of principles of management. What are their nature? First of all, these principles of management are universally applicable, whether in India, US, UK, Australia, in wherever you will go, wherever the management is required, the same principles of management are applicable. Again, the second thing is these are general guidelines. These principles of management do not provide any ready-made solutions. The principles of management are just the general guidelines for the managers, and they provide the managers with the useful insights to think into the reality, into the practical world. ये प्रिंसिपल्स एक पूरा एरिया प्रोवाइड कर देते हैं और बता देते हैं कि हमें किस वे में, किस डायरेक्शन में सोचना है, मैनेजर किस डायरेक्शन में सोचे और किस तरह से अपना सॉल्यूशन ड्राइव करे. हाउएवर, फॉर द सॉल्यूशन द क्रिएटिविटी ऑफ मैनेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Then the third comes is formed by practice and experimentation. These principles of management have not been evolved overnight, but these have been formed by practice and experimentation. दो ऑथर हैं FW टेलर एंड हेनरी फ्योल. इन दोनों ने कंटिन्यूसली बहुत सारे एम्प्लॉयज पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपने अंडर वर्क कर रहे एम्प्लॉयज के ऊपर प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया और उसके बाद में आफ्टर देयर कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन दे हैव फॉर्म्ड दीज principles. So these principles of management are formed by practice and experimentation and are not formed by overnight. Then these principles of management are flexible in nature. Flexible in nature का meaning है कि इनको आप modify कर सकते हैं according to your need, according to the situations. जैसी मार्केट में चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी थोड़ा अमेंड करके यूज कर सकते हैं. अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस इन प्रिवेलिंग इन द मार्केट, वी कैन जस्ट चेंज एंड मॉडिफाई दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. These are not rigid because these are flexible. Then these are mainly behavioral in nature because the principles of management have to be applied over the human beings. The principles of management are not applied over the non-living things, are not to be applied over the machines, but principles of management are to be applied on human beings, and they directly influence the behavior, the thinking of the workers or the employees on whom these are applied. So the principles of management are behavioral in nature because they influence the behavior of the employees working under them. Then there is a cause and effect relationship between these principles of management. What does cause and effect relationship mean? Let me explain it with one of the principle. There is one principle, आपने पहले भी क्योंकि पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो ये तो रिवीजन है, तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ. डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने जो दिया है हमने पढ़ा है. और डिवीजन ऑफ वर्क का अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क हमने अप्लाई किया है, सो वी विल अचीव स्पेशलाइजेशन. सो देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करने से आपको उसका क्या इफेक्ट मिलेगा. ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है. एंड द लास्ट वन इज
these are contingent. Contingent means these have to be applied according to the situations, according to the कंडीशन. ऐसा नहीं कि 14 प्रिंसिपल्स है तो पूरे 14 अप्लाई होंगे. हो सकता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उस 14 में से 10 की रिक्वायरमेंट हो, 11 की रिक्वायरमेंट हो, 8 की रिक्वायरमेंट हो. तो कंटिंजेंट मीन्स according to the requirement we will apply these principles and we will not apply all the principles blindly. So these were the nature of principles of management. अगर एग्जामिनेशन में आपको फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने के लिए आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने के लिए आता है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने के लिए आता है, इन ऑल द सिचुएशंस same points have to be prescribed and with the explanation also. ठीक है. अगर वर्ड आता है स्टेट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट मींस आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है हेडिंग के साथ में. और पहले हम ये 21 डेज में अपना पूरा रिवीजन कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और जस्ट उसके बाद में मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से एक नया सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें डेली हर चैप्टर में से, हर टॉपिक में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो जुड़े रहिए. अगर आप न्यू है चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, डेली पढ़ाई करते रहिए. जैसे कि आपको पता है जल्दी ही डेट शीट भी आने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशन की. तो अब तो राउंड द क्लॉक आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, दैट इज द टारगेट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. ओके, सो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हो गया. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस. ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, क्या इनकी कोई नीड है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, what is the significance of these principles of management? क्या हमें इन्हें जरूरी है अप्लाई करना? So for that the first one is these principles of management provide useful insight to the managers. managers को एक थिंकिंग एरिया प्रोवाइड कर देता है कि किस डायरेक्शन में हमें मैनेजर्स सोचें और डिसीजन लें. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, these are not the ready-made solutions, these are just the general guidelines and these provide the managers with the useful insight. कि क्या पहले इस तरह की सिचुएशन में क्या डिसीजन लिए गए हैं और हम क्या ले सकते हैं. इस तरह का एक इनर माइंड प्रोवाइड कर देता है, इनसाइट प्रोवाइड कर देता है, कुछ क्लूज दे देता है टू द मैनेजर्स. सो ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज द इम्पोर्टेंस. द सेकेंडली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. दो वर्ड यूज किए हैं यहाँ पे, पहला है ऑप्टिमम और दूसरा है इफेक्टिव. यू ऑल नो दैट इज optimum refers to the efficient use of resources and effectiveness means completion of work on time. चैप्टर नंबर 1 में ये दोनों पॉइंट्स efficiency and effectiveness हमने डिस्कस किया है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो पाता है, यानी कि नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो पाता है ओनली विद द application of principles of management in an exact manner, in an accurate manner. And effective administration possible हो पाता है again only with application of principles of management in an accurate and exact manner. Then third importance इसका है scientific decision. Whenever the principles of management are applied, these decisions are not based over the rule of thumb के conventional मेथड्स पे ले लिए या हमारे तो ऐसे ही सिस्टम चलता है. जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, डिसीजंस साइंटिफिक होते हैं. अब उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है. डिसीजंस में हमारे पास में रीजन होता है कि व्हाई वी हैव अप्लाइड दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल. Then there is one more importance, that is meeting changing environment requirements. You all know that is business environment is ever changing, always. कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है. आज सिचुएशन अलग है, 4 दिन बाद अलग होगी, 1 महीने बाद कुछ चेंज हो जाएगी. अभी आज से 5 दिन पहले एकदम से शेयर मार्केट डाउन हो गया था, ठीक है, शेयर मार्केट क्रैश की सिचुएशन आई थी और अभी वापस से अप होने लग गया है. अगर आज से 6 महीने पहले की बात करें, लॉकडाउन लगा हुआ था, बिजनेसेस सारे बंद थे, अभी ओपन है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड है, अनसर्टेन है, और इन अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए हमें हेल्प कौन करता है? इन अनसर्टेनिटीज में सर्वाइव करने और ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो दिस इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स. देन देयर इज वन significance, that is one importance, that is fulfilling social responsibility. The principles of management also guide the employees to fulfill their social responsibilities towards the society, the social responsibilities of the business towards the society, so that the business can gain reputation and goodwill in the society. And the last significance is management training, education and research.
The principles of management are such guidelines which helps in the training of management in the education and research work for management. Now अगर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली आप ये लिखेंगे. अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी आप सेम आंसर लिखेंगे. अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो नीड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी आपको सेम आंसर लिखना है. मैंने पहले ही बताया था, दैट इज नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम पॉइंट्स होते हैं, एंड सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एंड नीड में सेम पॉइंट्स होते हैं. तो अगर कोई भी क्वेरी है यहाँ तक तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा. विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको रिप्लाई मिलेगा, कुछ भी कमेंट अगर आप अपना क्वेरी कमेंट में लिखते हैं तो. अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट को और उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल मैनेजमेंट को. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रपोज किया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. So he has propounded total 4 principles of management and 8 techniques of scientific management. Why these principles and techniques are known as to be scientific management? Because there is a clear cut cause and effect relationship, and these are based over the scientific thoughts, scientific thinking, scientific mentality. Rule of thumb नहीं है. These are जस्ट हैव अ डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा वो हमें प्रिडिक्ट हो सकता है पहले. तो शुरू करते हैं. शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में देता जा रहा हूँ. बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक का अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस इनके सभी टॉपिक्स के अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हर प्रिंसिपल एक्सप्लेंड है. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स in the organization every manager should take decisions based over a scientific approach instead of taking decisions based over the conventional approaches. रूल ऑफ थंब का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही सिस्टम चलता है, हमारे पिछले साल हमने ऐसा किया था इसलिए इस साल भी हम ऐसे ही करेंगे, ये तो हो गया रूल ऑफ थंब. और साइंटिफिक साइंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन हम जब डिसीजन लेते हैं तो वो होता है साइंस, साइंटिफिक डिसीजन. तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है, that is the first principle of management is in the organization, in the business organization, the every manager should apply a scientific approach instead of rule of thumb. The second is harmony, not discord. A very nice principle he has propounded. There should be a harmony between the two groups working in the organization. What are the two groups working in the organization? One is the management, another one is the workers. अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कुछ डिस्कॉर्ड की सिचुएशन होगी, कुछ खींचतान होगा, कुछ अनट्रस्ट की सिचुएशन होगी, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती, एक्सपेंड नहीं कर सकती. देयर शुड बी प्रॉपर हार्मनी, देयर शुड बी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट. एंड उसी के एक्सपेंशन में एक और प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी यही चीज आती है कि जो मैनेजमेंट है उसे ये समझना चाहिए कि वर्कर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और बिना वर्कर्स के हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी. वर्कर्स को ये समझना चाहिए कि मैनेजमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, बिकॉज मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तो बिजनेस ग्रो करेगा और बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाएंगी. ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर. पहली बात. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में एक और बात आती है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो आपस में भी लड़ाई झगड़ा करके काम ना करें, बल्कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से वर्क करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें. वर्कर्स आपस में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क करें और मैनेजमेंट और वर्कर्स दो जो ग्रुप हैं इनमें भी आपस में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे. देन आता है फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his greatest efficiency and prosperity. It indicates for providing training and developmental chances to the workers.
एक बार आपने किसी वर्कर को किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पर अपॉइंट किया है, विद हिज अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज, क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस, उसे प्रमोशन के चांसेस मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन को क्लर्क के पोस्ट पर अपॉइंट किया और क्लर्क से रिटायर कर दिया जाए जबकि उसमें पोटेंशियल बहुत था। तो एवरी मैनेजर शुड realize, every manager should just understand the capabilities, qualities of different workers, and accordingly they should be rewarded, they should be provided chances for the training and expanding their capabilities and the development, that is promotion. तो ये है 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी के साथ में एफडब्ल्यू टेलर ने 8 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी बताई हैं। द फर्स्ट वन इन दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। आपको याद होगा फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या था, एक अच्छा सा डायग्राम बना हुआ था जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया था। वन वाज द प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड अनदर वन वाज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आप एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमने टोटल 4 एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए थे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो कि अपने पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे थे। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था यानी कि एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, उसके अंडर में भी हमने टोटल 4 एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए थे। यानी कि इस डायग्राम को देख के आप, और ये सारे के सारे 8 एक्सपर्ट्स, ये जो टोटल 4 + 4 8 एक्सपर्ट्स थे, ये सारे के सारे मिलके वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते थे, या कह सकते हैं वर्कर्स को गाइड कर रहे थे, है ना, वर्कर्स को। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या था, फंक्शनल फोरमैनशिप के थ्रू एफडब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया है देयर शुड बी अ प्रॉपर person appointed who is an expert in that particular field. According to this technique, टेलर हैज सजेस्टेड कि ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर शुड बी 4 एक्सपर्ट्स who are specialized, who are skilled in that particular field. और ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज, अपनी एक्सपर्टाइज एडवाइस वर्कर्स को प्रोवाइड करें, इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को प्रोवाइड करें। सो दिस इज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं तो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फ्यूल का, डिवीजन ऑफ वर्क। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सपेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। एक और बात, एक और प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का, यूनिटी ऑफ कमांड। फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी टेक्निक ऑफ टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में कहा था एक बार में वर्कर को एक ही पर्सन से इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए, ऑर्डर्स मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्कर्स को कितने लोगों से एक साथ ऑर्डर मिल रहे हैं, 8 पर्सन से। सो दिस फंक्शनल फोरमैनशिप इज opposite or contradictory to the unity of command as and it is an expansion of division of work. फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या है, जो भी वर्क है उन सबका प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट कर दें, यानी कि जो वर्क कंप्लीट होने का क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करें या टाइम स्टैंडर्ड की बात करें, हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स कर दें। एंड सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग होता है जो अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम हटा दें, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोसेस अननेसेसरी लेंदी हो रहा है तो प्रोसेस को शॉर्ट किया जाए, अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो टाइम कम लिया जाए, कोई अननेसेसरी कॉस्ट है उसको हटा दिया जाए। सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग जो अनरिक्वायर्ड थिंग्स हैं उनको हटा दिया जाए। फिर आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में मेन फोकस है प्रोडक्शन का एक पर्टिकुलर मेथड चूज करना, और वो मेथड भी ऐसे चूज नहीं करना है। द मेथड शुड बी चोजन बेस्ड ओवर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ओवर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। जब हम 2, 4, 5 अल्टरनेटिव मेथड्स को आपस में कंपेयर करके चूज करेंगे और उसमें से जो बेस्ट मेथड हमें लगेगा, बेस्ट मेथड कौन सा होता है, द मेथड विच विल प्रोवाइड अस द मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द लीस्ट कॉस्ट। The method which will provide us the maximum production at a least cost with the minimum cost is known as the best method of production. फिर आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में मेनली हमें फोकस करना है 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पर। मूवमेंट किसके, मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स, नो सॉरी नॉट 3, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर द प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड द नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। 3 नहीं है, टोटल 2 तरह के मूवमेंट पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है मोशन स्टडी में, प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक इनिशिएटिव टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें कि कौन से ऐसे मूवमेंट हैं वर्कर्स के
जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि रिक्वायर्ड है, जिनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। और दूसरे, क्योंकि मूवमेंट से होता है क्या, मूवमेंट से प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्टिविटी कम होती है, पर्सन का टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए हमें इन मूवमेंट्स को, मूवमेंट ऑफ वर्कर्स को ऑब्जर्व करना है। और उसमें से जो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, यानी कि एक मशीन से दूसरी मशीनरी पे रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो जरूरी है। तो जो प्रोडक्टिव मूवमेंट है उन्हें तो हमें कुछ नहीं करना है, बट जो नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट है, लेजर एक्टिविटीज के हैं, जिन्हें डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, उन्हें डिसकंटिन्यू करने के लिए, उन्हें एलिमिनेट करने के लिए स्टेप्स लिए जाए। ये मोशन स्टडी में है। फिर आता है टाइम स्टडी। अंडर द टाइम स्टडी वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच एंड एवरी वर्कर एंड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि अगेन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए टाइम स्टडी। ऐसा नहीं कि रूल ऑफ थंब का हमने ले लिया, जो मैनेजर को जैसा कि 10 मिनट में काम होना चाहिए 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में होना चाहिए 15 मिनट में हो जाए, नहीं। जो भी हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है, वो स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ओवर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखें, हम ऑब्जर्व करें कि इस वर्क को नॉर्मली एम्प्लॉय कितनी देर में कंप्लीट कर पाता है, उस हिसाब से हम टाइम सेट करें, फॉर द स्टैंडर्ड टाइम सेट करें फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर द एम्प्लॉय। तो कितने हमने देखे स्टडीज का, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी। इसी के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास में फैटिग स्टडी। फैटिग का मीनिंग होता है थकावट, और फैटिग स्टडी का मीनिंग होता है दैट इज वी हैव टू अंडरगो विद फोर थ्री वी हैव टू अंडरगो विद द थ्री काइंड्स ऑफ स्टडीज अंडर द फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी में सबसे पहला हमें देखना होता है द रेस्ट इंटरवल, टोटल नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। उसके बाद हमें देखना होता है फैटिग स्टडी में द ड्यूरेशन ऑफ ईच रेस्ट इंटरवल, के एक रेस्ट इंटरवल कितने मिनट्स का है ड्यूरेशन। और तीसरा हमें इसमें देखना होता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि हमने जो रेस्ट इंटरवल थे वो कितने कितनी देर में दिए, क्या हमने 2-2 घंटे में दिए या 4-4 घंटे में दिए, कितनी कितनी देर में हमने रेस्ट इंटरवल दिए, टोटल नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, देन the duration of each rest interval, and then frequency of रेस्ट इंटरवल, के एक दो रेस्ट इंटरवल के बीच में कितना टाइम रहता है, कितना ड्यूरेशन रहता है, वो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच रेस्ट इंटरवल। अब जरूरी है कि ये फैटिग स्टडी की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, फैटिग स्टडी में रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है, और रेस्ट इंटरवल इसलिए दिए जाते हैं सो दैट द एम्प्लॉय कैन रीगेन इट्स लॉस्ट एनर्जी। एक बार कंटिन्यूसली जब पर्सन वर्क करता रहता है तो उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है। आफ्टर गेटिंग अ 10 to 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक, द पर्सन विल स्टार्ट वर्किंग विद सेम लेवल ऑफ एनर्जी इन विच ही वॉज वर्किंग इन द मॉर्निंग। तो इसी तरह से अपने स्कूल में भी 4 पीरियड्स के बाद इंटरवल होता है, उसके बाद में छुट्टी होती है। तो क्यों, वो इसीलिए होता है जिससे कि पर्सन को बीच में ब्रेक मिलेगा तो उसकी लॉस्ट एनर्जी को वो रीगेन कर पाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट आ रहा है अपने पास में डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो पीस वेज को समझना है आपको, और दूसरा आपको डिफरेंशियल को समझना है। पहले देखें पीस वेज क्या होता है। पीस वेज का मतलब है हम पर यूनिट रेट डिसाइड कर दें वर्कर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड कर दिया ₹2 पर यूनिट। अब जो भी पर्सन 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो उसको कितने रुपए की वेजेस मिल जाएंगी। 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले को ₹20 की वेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। और हमने ₹2 पर यूनिट की वेजेस डिसाइड कर रखी हैं, तो जो पर्सन 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको कितने रुपए की वेजेस मिल जाएंगी, उसे ₹30 की वेजेस मिल जाएंगी। ये होता है पीस वेज सिस्टम, यानी जितने पीसेस प्रोड्यूस करेगा पर्सन उतने ही प्रपोर्शन में वेजेस मिलती जाएंगी। अगर कोई पर्सन है 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो उसको कितनी वेजेस मिल जाएंगी, ₹100 की वेजेस मिल जाएंगी। ये तो हो गया पीस वेज सिस्टम। दूसरी बात ये कहता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब है हम एक नहीं बल्कि दो डिफरेंट वेज रेट्स रखें, ₹2 एंड ₹3। रुपीज फॉर द एफिशिएंट वर्कर हायर वेज रेट, एंड फॉर द इनएफिशिएंट वर्कर लोअर वेज रेट। अब बात यह आती है कि एफिशिएंट कौन होंगे और इनएफिशिएंट कौन होंगे। तो हमने मेथड स्टडी में और टाइम स्टडी में कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे। इवन स्टैंडर्डाइजेशन में हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि हर एम्प्लॉय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना करेगा और कितनी देर में करेगा। अगर कोई एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को अचीव कर पाता है तो वो हो गया एफिशिएंट वर्कर हु विल बी पेड एट अ हायर वेज रेट, एंड द वर्कर हु इज अनएबल टू produce the standard production in the specified time will be called as inefficient worker who will be paid at a lower wage rate। तो ये होता है differential piece wage system, higher wage rate and lower wage rate। The efficient worker will be paid with the higher wage rate and inefficient workers will be paid with the lower wage rate।
अब आप यहाँ पे एक चीज देखें, टोटल आपको यहाँ पे कितने टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट नजर आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था देयर आर 8 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट propounded बाय FW टेलर, लेकिन यहाँ पे तो हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ही नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कि अगर आप ये जो 4 काइंड्स ऑफ स्टडीज हमने देखी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी, इनको आपस में कंबाइन कर दें तो बनता है 8th आपका, दैट इज नोन एज वर्क स्टडी। ये भी एग्जामिनेशन में कभी कभी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्टडी। अगर वर्क स्टडी आपके लिए लिखने के लिए आता है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, आपको ऑल द 4 काइंड्स ऑफ स्टडी को एक्सप्लेन करना है। वर्क स्टडी का मतलब है द method study as well as motion study as well as time study as well as fatigue study। तो ये है आपका वर्क स्टडी, चारों को कंबाइन करके बन जाता है आपका वर्क स्टडी। एग्जाम में वर्क स्टडी आए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अब इसमें क्या लिखें। वर्क स्टडी में आपको ये चारों डिफाइन करने होंगे। सो आज का टॉपिक हम यहीं पे पॉज करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो या तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है kunalsinghal85 KUNALSINGHAL85 तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं। और किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट में आप रिवीजन के वीडियोस चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। मैं उसी टॉपिक पे, उसी से रिलेटेड वीडियोस जरूर से आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू। सो वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।